Thank you. So, good morning, dear investors. On behalf of Credence Wealth, I welcome you all on our today's quarterly webinar of sectorial movers and shakers. So, before we move forward, me and Karthik sir were in a discussion that what topic should we keep for our quarterly session, and as the year is just begin, FY24. So, what topic will excite our investors? So that is why we chose on sectorial movers and shakers. So I would just like to give a brief about why this topic. So as we have seen that the markets are nearly stagnant from past 17 to 18 months, and within this period there were many difficult economic situations which we all have faced, like like Russia Ukraine war, US Fed increasing rates, the RBI increasing rates, also the high inflation, and we have also witnessed many layoffs in companies. So when these periods stuck the economic situations, the most difficult part which comes upon the fund manager's hand is which sectors will perform in this economic conditions. And in every economic condition there is a different king in sector which comes out. So this takes a lot of research and knowledge on the part of fund manager. So in today's session, Karthik sir will focus on majority of the sectors and give his review and what are his expectations in the coming period. So to give a short introduction about Karthik sir, he always keeps in mind specific principles while making any decisions. So these principles which he follows is maintaining a balance between active and passive management. He always gives major importance to risk and he never avoids them. And he also views market volatility as an extreme friend of his and for also the long-term investors. So I hand over the podium to you, Karthik sir. Yeah. Yashvi, good morning. Good morning, everyone. Thanks for taking your time out and be part of this presentation. I would be trying my best to take you through in detail about whatever we have prepared. And then later on we can have a Q&A session. So this will be slightly longer but very interesting session, and you will have a different perspective about the the markets and the sectors going ahead. And it is Sunday, it is 11 o'clock. I know it is slightly difficult for most of the people to join, being a Sunday, being a lazy day. So this shows your passion towards market and towards your association with us. So without wasting time, let's start with presentation. This is visible, right, Yashvi? Yes, sir, it's visible. Thank you. So You can just make it to full screen if full screen. This is the not a full screen. The arrows which are seen on top. Yeah, that. The two arrows in opposite direction. I think this is full screen, Yashvi. This is fine, right? Yes, sir. This is fine. Thank you. Yeah. So core philosophy, जैसे पहले तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है और कुछ न्यू इन्वेस्टर्स भी है जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं. तो मैं बहुत क्विकली मेरा कोर फिलोसॉफी जो यशवी ने बताया वो बताऊंगा. और ये जो हमारा क्रेडेंस वेल्थ मैनेजमेंट है, जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए बता दे कि ये हमारा सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस सर्विस चलाते हैं. पीएमएस में मिनिमम टिकट साइज 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है.
सो उसमें हमारे पास जो स्कीम्स है उसमें से ऑल वेदर स्कीम के ऊपर हम बात करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारे कोर प्रिंसिपल है वो ये चार आपको स्क्रीन पे दिखते हैं। एक अलोकेशन एंड सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, कि क्या लेना और कितनी क्वांटिटी में लेना, उसका बहुत महत्व है। कि आपको कोई भी स्टॉक का सिलेक्शन मैटर करता है, साथ में उसको कितनी क्वांटिटी में अलोकेशन करना है पोर्टफोलियो वेट्स में, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लार्ज कैप ज्यादा करके अलोकेशन स्ट्रेटेजी से खेलते हैं, और मिड एंड स्मॉल कैप में हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं सिलेक्शन पे, क्योंकि लार्ज कैप में सिलेक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो एक ये हो गया। दूसरा, पूरा पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग या साइक्लिकल पोर्टफोलियो से या स्टॉक से नहीं भर देते, उसमें भी हम बैलेंस रखते हैं कि कुछ बिजनेस स्टेडी स्टेट कंपाउंडिंग बिजनेस है, कुछ साइक्लिकल बिजनेस है जिसमें रियली नंबर्स टर्न अराउंड दिखते हैं। तीसरा, लेन चेंजिंग एंड स्टेडी स्टेट बिजनेस का भी हम बैलेंस करते हैं, कि पूरा टर्न अराउंड बिजनेस हो गया या पूरा बिजनेस में कोई फॉर्च्यून चेंज हो रहा है, प्रमोटर बदल गए हैं, मैनेजमेंट बदल गया है, प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ है, तो ऐसा जो भी है उसको लेन चेंजिंग बिजनेस बोलते हैं। लेकिन वो भी हम पूरा पूरा पोर्टफोलियो उससे नहीं बनाते हैं। तो देर इज अ बैलेंस। एंड लास्टली, एक्टिव मैनेजमेंट एंड बाय एंड होल्ड। सो हम दोनों करते हैं। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पोर्टफोलियो में कई बार मूवमेंट नहीं होती है, और होती है तो अच्छी खासी हो जाती है, या कुछ स्टॉक्स निकलते, कुछ स्टॉक इन होते हैं। तो मुझे तो आपका रिटर्न मैक्सिमाइज करना है, मुझे कुछ बेच के ही कुछ लेना है। और जब मुझे समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक में अभी इंटरेस्टिंग टाइम नहीं है और कुछ और जगह पे इंटरेस्टिंग टाइम है, तो वो रिशफलिंग करना पड़ता है। तो वो है एक्टिव मैनेजमेंट। और कई बार क्या होता है, कुछ स्टॉक हमारे पास बहुत टाइम तक पड़े रहते हैं, बिकॉज वो मैनेजमेंट इज डूइंग गुड, और हम हमें भरोसा है कि नंबर्स आते रहेंगे, तो विल राइड द जर्नी। सो दैट्स हाउ द बैलेंसिंग एक्ट इज दैट। वी रिस्पेक्ट रिस्क अ लॉट। ये हमने ये साल में या पिछले 17-18 महीने में देख लिया है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, उसमें जिस हिसाब से पेन है इंटरनली, उस हिसाब से काफी पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो रिस्क को इग्नोर कर रहे थे, या जो इन्वेस्टर रिस्क को इग्नोर कर रहे थे, उन्होंने अपने रिटर्न्स में देख लिया भली बात कि क्या उसका नतीजा आता है। So we don't just chase return alone, we also look at the risk equally. तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो हम क्लियरली बिलीव करते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आर स्मूथ एंड रिस्क निग्लेक्टेड रिटर्न्स आर वेरी वॉलेटाइल। थर्ड, मार्केट वॉलेटिलिटी को हम पॉजिटिवली लेते हैं। हम उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हम ईगो एंड रिजिडिटी वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में, इन्वेस्टमेंट की डिक्शनरी में तो है ही नहीं। एंड बिकॉज स्टॉक मार्केट में कैपिटल फाइनाइट है, अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है, तो उसके लिए कुछ लॉस बुक करना पड़े तो भी करके नई अपॉर्चुनिटी पिकअप करनी पड़ती है। सो यू नो, पीपल डोंट डू दैट, एंड दैट्स वेयर द आउट परफॉर्मर एंड अंडर परफॉर्मर का जो गैप है वो बढ़ता जाता है। सो आउट परफॉर्मर एक्सेप्ट करते हैं मिस्टेक को, और अंडर परफॉर्मर निग्लेक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी को। सो इफ यू कैन नॉट डेवलप दिस आर्ट, देन यू हैव टू हायर द आर्टिस्ट फॉर दैट। सो दैट्स व्हाट इज दिस थ्री कोर फिलोसॉफीज जिसके ऊपर हम काम करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। देखो, पिछ FY23 जब चालू हुआ था ना, तब किसी ने नहीं सोचा था, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा इवेंटफुल ईयर जाएगा। एंड दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट इज। It started with, like, the Russia-Ukraine war, and we never thought कि war इतना लंबा चलेगा। मतलब it was initially perceived that the Ukraine is too small, and then the Russia would be easily taking over part of the Ukraine, and it will get over. But the way the war took shape, and eventually, other countries joined the different pockets, and eventually the war got elongated. और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े आए। उसका इम्प्लीकेशन इकोनॉमिक साइड पे बहुत बड़ा है। चलो, मिलिट्री साइड पे या फिर ह्यूमन लॉसेस के साइड पे तो सिर्फ दो कंट्री जो लड़ रहे हैं उसमें हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक साइड पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट आया है। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि इन्फ्लेशन बहुत जोर से स्पाइक हुआ, एंड सप्लाई चेन ग्लोबली डिस्टर्ब हो गई, ऑयल प्राइसेस शूट अप हो गए, कमोडिटी प्राइसेस शूट अप हो गए। तो ऑल ऑफ अ सडन, और उस टाइम पे क्या सिस्टम में लिक्विडिटी भरी पड़ी थी। फेड का इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो था। ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक्स एक्सपांशन मोड में थे, मनी प्रिंट कर रहे थे, इकोनॉमी को पुश कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी कोविड से बाहर निकल के दौड़ना जस्ट चालू किया था। और टू प्रमोट द ग्रोथ, रिस्पेक्टिव कंट्रीज जो थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट लोअर डाउन करके, मनी प्रिंट करके सिस्टम को लिक्विडिटी से फ्लश करके रखा हुआ था। एंड वो जब
जब ऐसा दौड़ने वाला माहौल था तब ये इन्फ्लेशन सप्लाई साइड शॉक की वजह से जो आया, और वो दोनों कॉम्बिनेशन इतना डेडली साबित हुआ कि वी हैड अ स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन। और टू टेम दैट ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया, एक ही पॉलिसी वेपन है उनके पास कि जब भी इन्फ्लेशन बहुत जोर से चलता है तो दे विल हैव टू स्टार्ट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। दैट इज, इंस्टेड ऑफ मनी प्रिंटिंग दे स्टॉप मनी प्रिंटिंग, दे स्टार्ट टाइटनिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव साइड पे। सो दे स्टार्ट टाइटनिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट फ्रंट। और वो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया तो उनको शुरू में लगा कि ये इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है और ये स्टिकी नहीं है, ये वॉर खत्म होगा तो इन्फ्लेशन चला जाएगा। But then later on, they realized that this inflation is not transient; it is staying here for long time. और उन्होंने इंटरेस्ट रेट जोर से बढ़ाना चालू किया। जो एक होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ना, एक होता है इंटेंसिटी से बढ़ना, उसमें बहुत फर्क है। And this happened because of the high intensity. You had a 500 plus basis point interest rate hike in US, which is intolerable for most part of the developed world. एंड उसका रिपरकेशन आया ग्लोबल, सारे मैक्रोज वीक हो गए, कोई भी पैरामीटर्स देख लो डेवलप वर्ल्ड के। और वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की वजह से इंडिया में जनरली डेवलप मार्केट में पैसा वापस जाता है इमर्जिंग मार्केट से, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज वीक होना चालू हो जाती है। इंटरेस्ट रेट की पैरिटी वहां पे जब 0 था तो वहां से पैसा इधर आता था, वहां पे अभी 4-5 हो गया। तो और इवेंचुअली बढ़ गया क्योंकि ये तो फेड का रेट है, तो पैसा निकलना चालू हुआ। सो वी हैड अ सीरीज ऑफ एफआई आउटफ्लो। और वो FY23 में $6 बिलियन, उसके आगे 22 में ऑलरेडी $17 बिलियन गया था, बिकॉज इंडिया वाज अ आउट परफॉर्मिंग मार्केट। इंडिया डिलीवर्ड अ वेरी सुपीरियर रिटर्न एंड देयर वाज ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग, उसमें ये एडिशनल आउटफ्लो चालू हुआ। सो ये एक सीक्वेंस बनता गया। उसके बाद क्या हुआ कि इक्विटी वैल्यूएशंस व्हिच वर वेरी बॉयंट, सो पी मल्टीपल्स बहुत हाई थे, तो वो सारे के सारे जो वैल्यूएशंस थे ना, जो लो इंटरेस्ट रेट की वजह से थे, वो कोलैप्स हो गए क्विक टाइम में। और हमारा जो प्रीमियम था ना, वो प्रीमियम भी इमर्जिंग मार्केट के सामने रिड्यूस हो गया। सो वी हैड दैट गाला टाइम और बेस्ट टाइम, वो ऑल ऑफ अ सडन हाथ से निकल गया। और काफी लोगों ने एनविसेज नहीं किया था कि यूएस में इतना फास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसकी वजह से ग्लोबल इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन टूटेंगे, इंडिया का ऑलरेडी प्रीमियम हाई है और जोर से टूटेगा। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जितने स्टार्टअप्स थे या फिर जो न्यू जनरेशन बिजनेसेस थे जिसके कैश फ्लो की विजिबिलिटी मल्टीपल ईयर्स बिहाइंड थी और वो होप्स पे चल रहे थे, कुछ अलग ही वैल्यूएशन का तरीका उनका था, उनका तो सिचुएशन और खराब हो गया और वहां पे मैक्सिमम वेल्थ इरोड हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में, स्पेशली स्टार्टअप्स में और प्राइवेट इक्विटी बैक बिजनेसेस जो पब्लिक मनी को चेस कर रहे थे। दूसरा, इंडिया में भी ऑब्वियसली वी हैड अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक, बिकॉज हमने तकरीबन 6 हाइक्स देखे अभी तक, बिकॉज वी हैड टू फॉलो दैट अलोंग विद द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, एंड हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा था। बट उसकी वजह से क्या हुआ कि सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारा रिपरकेशन हमेशा लेग इफेक्ट से आता है, तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन स्लो डाउन होना चालू हो गया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने देखा होगा कि यूएस में क्रेडिट या फिर यूरोप में जैसे क्रेडिट सुइज जो जो भी बैंक्स थी यूएस में, वहां पे क्राइसिस होना चालू हुआ, स्पेशली स्टार्टअप ओरिएंटेड बैंक्स या फिर आपके क्रिप्टोज एक्सचेंज वाले जो भी कंपनीज, वहां पे बहुत बुरा हाल हुआ। एंड अभी भी ये सिचुएशन है कि काफी इन्फ्लेशन स्टबन है ग्लोबल लेवल्स पे और उनके जो कंफर्ट रेंज है उससे बाहर है, तो दे विल हैव टू कीप इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर अ व्हाइल। बट एक बात जरूर है कि वहां पे दे आर अप्रोचिंग नियर द पिक ऑफ देयर इंटरेस्ट रेट साइकिल, बट वो पिक पे काफी टाइम खड़ा रहने के बाद, पॉज लेने के बाद, दे विल हैव टू सी कि इकोनॉमी कूल ऑफ हुआ है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, तब जाके वो इंटरेस्ट रेट काटना चालू करेंगे, तो दैट इज स्टिल सम टाइम अवे। But market discounts few things very early. So let's see how this shapes up. And lastly, RBI ने first time ऐसा हुआ कि they have taken pause from the rate hike. And हमारे हिसाब से majority of the interest rate hike in India is behind, because हमारा all said and done RBI has done a commendable job, and we are pretty much controlling the inflation number in India. And against that हमारा growth भी इतना ज्यादा compromise नहीं हुआ जितना बाकी डेवलप वर्ल्ड में हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ग्रोथ वहां का जोर से टूटा। सो दैट्स वेयर द ब्यूटी इज, एंड इवेंचुअली वही सेंट्रल बैंक का काम होना चाहिए भाई। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ग्रोथ को तोड़ना है,
वो वही करना है तो it is like anybody can understand and do it, but you have to manage the growth to some extent. There has to be a moderation in the growth, but it should not collapse. At the same time, you have to control the inflation in a reasonable level, and then take a pause and then eventually take the course corrective actions. So that's what the beauty of the RBI. And of course, we should all have a proud moment for the ability of our government to navigate this global crisis so successfully. So ये 10 पॉइंट की समरी में FY23 पूरा आ जाता है. अभी आप देखिए रिटर्न्स. सो देयर वर फ्यू मार्केट जिसका बेस बहुत खराब था, तो वहां पे रिटर्न्स कुछ अच्छे आए. सो द our market returns are almost flat. निफ्टी का रिटर्न almost flat है, 60 बिप्स माइनस है. नास्डेक significantly impacted, so as S&P 500 and other markets. At Credence Wealth All-Weather Fund, our return is positive 3.66 net of all fees and charges at TWRR portfolio level returns. So that's a phenomenal 582 bips alpha over a benchmark. And this is quite incredible. We have navigated this tough time quite successfully. Our investors have actually not felt the pain what market has given in general to large audiences, which we will look at in the further part of the presentation. This is a sector-wise performance. आप देख सकते हैं auto and banking has been the best performing sector. Pharma is negative, metal is negative, realty is negative, and IT is also negative. There is a significant wealth erosion in these four sectors. And ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो एक चीज समझना पड़ेगा कि IT सेक्टर है ना, that is dependent upon a developed market largely. वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट जोर से बढ़ता है, वहां के ग्रोथ कम होंगे, तो वहां पे कॉर्पोरेट्स का जो IT बजट स्पेंड है वो कम होता है. तो उसके साथ साथ कोविड के बाद जो IT सेक्टर में बूम आया था और जो इजी मनी की वजह से वैल्यूएशन स्पाइक हुआ था ना, वो दोनों चीज डबल वेमी हो गए. एक बाजू वैल्यूएशन बहुत ऊपर था, दूसरी बाजू आपके अर्निंग्स भी ऊपर थे. अचानक अर्निंग्स ग्रोथ कम हुआ और वैल्यूएशन तो जोर से टूटना चालू हुआ. एंड दैट्स व्हाई वी सॉ एक्चुअली मैसिव फॉल इन नास्डेक. ये तो लेटर पार्ट ऑफ द मंथ्स में FY23 में we could see the recovery in Nasdaq because we took also exposure in Nasdaq ETF and we are holding roughly 2.2% weightage in our portfolio, where we are close to 10% in the money. So I can understand the level of pain Nasdaq actually gave to the investors at that point of time. So IT was the worst sector. The real estate, obviously, when interest rate goes up, this sector reacts negatively. So as commodities. Pharma is a little surprising thing, but I think things are really turning around at the sector as a whole, and this sector should return to the green returns in the FY24. अभी आप देखिए FI flows, जैसे I was just telling you that FY21 had a massive FI inflow because जो मनी प्रिंटिंग डेवलप मार्केट में हुआ, वहां पे इंटरेस्ट रेट इतना नीचे नीचे जाने चालू हुए. So that money started chasing the high return, high interest rate markets like India, part of the emerging market territory. And that started reversing in FY22, intensified in second half of the FY22 after the onset of the war, and further got accentuated and remain in the negative territory for the full part of FY23. DII, on the contrary, has been seeing the inflows consistently almost every year, barring FY21. And despite of the strong inflows by the DII, some of the market internals have been, so the indices level आपको return बहुत अच्छे दिखेंगे. अच्छे in the sense there is relatively quite less pain at the indices level, but internal market returns are very, very pathetic. What was the recipe for the positive alpha amidst the market turmoil? So our sector rotation has moved in our favor, and we have generated alpha by way of not only picking up the right stock from the right sector, but also, avoiding the certain segments of the market जहाँ पे हमको clear cut risk दिख रहा था. हमने वो risk को chase नहीं किया. Certain time पे हमारा रिस्क चेज नहीं किया, तो रिटर्न भी थोड़ा मॉडरेट दिख रहा था कुछ टाइम पे, लेकिन वो हमने क्या बोलते, वी वर नॉट पर्टर्ब, वी वर नॉट डिस्टर्ब, ऑफ कोर्स वी वर वॉचफुल, एंड दैट्स व्हाई जब हमको हमारा जो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क में वो चीज परमिट नहीं कर रहा था, तो फाइनली वही चीज रिवर्स हुआ है.
So, the pre-war, we were overweight on chemical, consumer discretionary, largely expensive stocks, IT and banking. And we were negative on metal, pharma, capital goods. Then onset of war, we actually moved to banking. We introduced auto, which was completely missing. Consumer staples and capital goods में हमारी entry हुई. We moved out of IT, almost negligible weight हमने कर दिया था. Chemical we completely almost moved out, and expensive growth stock and consumer discretionary से हम निकल गए. अभी हमारी पोजिशनिंग ऐसी है, वी आर अगेन पॉजिटिव ऑन बैंकिंग, ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड डिस्क्रिशनरी. We also have pharma exposure, and we are building a position in IT and metals. But वहाँ पे अभी भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं है IT एंड मेटल्स में जितना होना चाहिए था या हो सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमको अभी भी कंसर्न्स दिख रहे हैं. सो वी हैव नॉट क्रिएटेड अ साइजेबल पोजीशन देयर. एंड वहां पे हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा कि एक्सपोजर टाइम पे लिया है आईटी में ऊपर से टूटने के बाद, वहां से रिटर्न थोड़ा बना, मार्क टू मार्केट गेन दिखा, वापस वो गेन वॉश आउट हो गया है. सो क्लियरली these two sectors are still under our wait and watch radar, and we are not very aggressively building a position. Chemical, we are still staying away. Expensive stocks, we are still staying away. I think chemical may another quarter pain is there, and then we might probably look at the stocks if at all we'll have to. So if you look at the last March versus this March portfolio at the sector level, then you can argue that, okay, the IT weights were 17%. Now the IT weight is, let's say, 9%, but ऐसा नहीं है, 17 से almost 0 गया, वहां से 9 हुआ है. So we actually saved a lot of money during the entire crash of the IT stocks. Capital goods was almost missing. Real estate was still there, 2.77%, which is not there. Construction is not there. Telecom is not there. So healthcare, we have increased the weight. So in the sense of pharma, so that's how the portfolio is navigated very well. आपको कुछ basic examples हम देते हैं कि TCS was part of the holding, and वहां से निकल के हम मारुति में गए. So we saved a lot of money in TCS. We actually made money in Maruti. It's a phenomenal switchover from one sector leader to another sector leader. This is within the sectors. Let's say Bajaj Finserv हमारे पास बहुत अच्छा था. We made 78% return. During that journey of the 78% return, हमने HDFC Bank बिल्कुल नहीं लिया. तो उसमें market gave HDFC Bank gave almost negative 8% return during that journey. We booked profit in Finserv Finance. We moved to HDFC Bank, which is now almost 19% positive. And Bajaj Finserv is negative 7-8% return since then. So these are very basic switchovers. These are not high risk bets. These are not fancy names. Maruti, TCS, Bajaj Finserv, Bajaj Finance, HDFC Bank. कुछ ऐसा extraordinary काम नहीं किया हमने कि कुछ ऐसा स्टॉक ले लिया कि जिसने हमको बहुत ज्यादा कमा के दिया. It's just a small navigation from one pocket to another, keeping the eyes and ears open, looking at the market dynamics and the earnings. एक ये चीज मैं आपको खास बताना चाहूंगा, ये दो स्लाइड, ये वाली और नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इन्वेस्टर और डायरेक्ट भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ये फील कर सकते हो कि देयर इज अ ह्यूज पेन इन द ब्रॉडर मार्केट, जबकि फ्लैगशिप इंडाइसिस का परफॉर्मेंस काफी इल्यूसिव रहा है. जैसे हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में NSE 200 का रिटर्न -2.16% है. तो आप बोलोगे कि नॉट दैट बैड, दैट वी कैन मैनेज दिस. -2% इज नॉट समथिंग विच इज वरीसम. हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न ऑल वेदर का 3.66 पॉजिटिव है. सो ऑब्वियसली वी आर सिटिंग ऑन 580 बिप्स अल्फा. बट इफ यू लुक एट द top 200 companies of India of last 12 months, the negative return stocks are 61%. It's a huge audience that out of 200 stocks, 61% stocks have given a negative return. Negative return with more than 15% negative return is 36%. It's a huge number. And top 100 और bottom 100 ऐसा करके 200 होता है, तो bottom 100 का एवरेज रिटर्न -27% है. मान लो आप ये सोचो कि मेरा NSE 200 में से कोई भी 6 स्टॉक भी मैंने बॉटम 100 से ले लिया होते, सिर्फ 6 स्टॉक, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न अभी बहुत ही खराब दिखता था, बिकॉज द एवरेज रिटर्न इटसेल्फ इज -27.
अभी हम एक साल छोड़ दे और इवन 18 मंथ्स का डेटा देखें, then also the benchmark is negative -3, which is still okay. -3 is not something which is taking away your breath. But when you look at the broader market returns, it's a shocker. Your 15% से ज्यादा negative return वाले 47% stock है, and bottom 250 stocks का average return -35% है. Imagine the level of wealth erosion. It's a very brutal market according to me on a internal parts of the market. वो हमने further dissect किया ये chart में. This is very interesting data for all of you. इसमें क्या किया है हमने, लार्ज निफ्टी 50 NSE 500 का डेटा निकाला, मतलब टॉप की 500 कंपनीज कि ये फाइनेंशियल ईयर में 52 वीक हाई से कितने परसेंटेज दूर है. तो देर आर, और इसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का फर्दर बाइफरकेशन है. तो 8 स्टॉक लार्ज कैप में ऐसे है जो 5% दूर है अपने 52 वीक हाई को टच करने में. मिड कैप में 9 स्टॉक है और स्मॉल कैप में 8 स्टॉक है. तो ये काफी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स है. चलो कि ये 8, 9 और 8 का रेशियो अच्छा बैठ रहा है. नाउ अभी नीचे आते हैं, 5 से 15% की रेंज है जहां पे स्टॉक दे आर 5 to 15% अवे फ्रॉम मेकिंग देयर 52 वीक हाइज. तो उसमें लार्ज कैप में 37 स्टॉक है, मिड कैप में 35 स्टॉक है. ऑलमोस्ट रेशियो सिमिलर है. स्मॉल कैप में यहाँ से बढ़ना चालू हुआ एंड दैट इज 49 काउंट्स. उसके बाद आता है जब और डीपर पेन आता है कि 15 से 30% नेगेटिव, मतलब दे आर स्टिल 15 to 30% अवे फ्रॉम हिटिंग देयर प्रीवियस 52 वीक हाई. तो उसमें लार्ज कैप में 34 स्टॉक से, मिड कैप में सीधा ये 85% ग्रोथ आ जाता है, 34 वाला 63, एंड लार्ज स्मॉल कैप में वही काउंट हो जाता है 83, विच इज 2.5 times more number than 34. So this ratio gets deteriorated at this range. Then 30 से 50% away from 52 week high. That's again a big wealth erosion, right? तो उसमें लार्ज कैप में सिर्फ 14 स्टॉक है, मिड कैप में सीधा 2.5 times ज्यादा 35 स्टॉक्स है, एंड स्मॉल कैप में 6 times ज्यादा कंपेयर टू लार्ज कैप 89 स्टॉक्स है. अभी 50 से 75 का हम बात नहीं करते. दैट इज अ ह्यूज वेल्थ इरोजन अगेन, जहाँ पे स्मॉल कैप में 19 स्टॉक है, मोर देन 75% अवे फ्रॉम 52 वीक हाई. इसमें दो सब सेगमेंट में दो स्टॉक है. सो क्लियरली देयर इज अ ह्यूज वेल्थ इरोजन जो आपको मैंने डाइसेक्ट करके दिया. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेटा कमिंग अप फ्रॉम आवर टीम. उस कंटेक्स्ट में देखिए तो एक सेंसेक्स का ये डेटा भी आया है. जैसे हम देख सकते हैं कि विद इन द सेंसेक्स अभी ओनली 27% स्टॉक ऐसे हैं जो सेंसेक्स के रिटर्न को बीट करते हैं. जैसे 30 कंपनी है सेंसेक्स में, तो उसमें 9 कंपनी ऐसी है जिसका रिटर्न सेंसेक्स के रिटर्न से ज्यादा है. बाकी की कंपनी का रिटर्न सेंसेक्स के रिटर्न से कम है. दैट मीन्स कि आपके विनर्स जो है विद इन द इंडेक्स इटसेल्फ इज आर रिड्यूसिंग. तो एज अ फंड मैनेजर आपकी जब विनिंग ऑडियंस कम हो जाती है, तो उसमें से आपको विनिंग ऑडियंस में से अच्छे स्टॉक पकड़ के अल्फा बनाना बेंचमार्क के ऊपर, नेट ऑफ फीस एंड चार्जेस एंड एवरीथिंग, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड यू मस्ट ऑल अप्रिशिएट दिस फैक्ट वेरी वेल. अभी हाउ दैट हैज बीन पॉसिबल. एक तो हम क्या ना इंटरनल एनालिसिस करते रहते हैं. रफली 75% ऑफ आवर पोर्टफोलियो वेट्स हैव आउटपरफॉर्म द बेंचमार्क. दैट मींस हमने ऐसे कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं और हमारा अलोकेशन, जबकि मैं आपको बताऊं, इट इज वर्थ हाईलाइटिंग दैट कि हमारे पोर्टफोलियो में ना सिर्फ लार्ज कैप होता है, हम मिड एंड स्मॉल कैप भी अच्छा खासा लेते हैं. तो भी, एंड आपने देखा कि मिड एंड स्मॉल कैप में मैसिव वेल्थ इरोजन हुआ इन प्रीवियस स्लाइड्स. तो भी आप देखिए कि हमारा जो विनिंग रेशियो है वो 75% के आजू बाजू है, जहां पे हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किए उन्होंने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया. एंड दैट इज व्हाई और ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल रिटर्न्स आर बेटर. एंड ये चार्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो अल्फा भी आया है ना, ब्रॉड बेस आया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया तो मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न्स ब्लेंडेड लेवल पे बेंचमार्क से ज्यादा आ गया. बिकॉज देन आई एम स्लाइटली गेटिंग अ लक देन द स्किल. जब स्किल होती है टू सम एक्सटेंट, हमारे फील्ड में क्या है ना, ये दोनों लक एंड स्किल का डिमार्केशन बड़ा मुश्किल होता है. मैं लकी भी हूँ, आई एम सेइंग दैट ओपनली, बट मैं थोड़ा सा
ये भी डेटा के साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि स्किल भी है, तब जाके हमने विनिंग नंबर्स ज्यादा सिलेक्ट किए हुए हैं। बट ये डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा काम में, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू लुक एट द अदर पोर्टफोलियोज व्हाइल यू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। And research is, of course, research is all about going right and wrong. But आपको you have to long live with the right. So you should be more right and you should be less wrong. So ये consistently करना पड़ता है कि ज्यादा right जाओ, कम wrong जाओ. Long live करो right के साथ, short live करो wrong के साथ. तब जाके रिटर्न बनते हैं. This is another interesting data point. बाजार ऊपर से ऑल टाइम हाई से निफ्टी 8% नीचे है. NSE 200 9.33% नीचे है. Small cap is down -25%. Nifty mid cap is down -8.82. And our portfolio is down -4.84. And as I said, our portfolio also has mid and small cap. And yet, our portfolio blended returns are even much better compared to just large cap index, that is Nifty 50. Forget about the individual mid and small cap indices. So that shows that how much efforts our team has put in terms of stock picking, stock selection and everything. अभी एक ये इंटरेस्टिंग डेटा मैंने बनाया है, मतलब ये ऐसा डेटा है कि आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, और ये हमारी यूएसपी रही हुई है। मतलब आपने अगर हमको आगे सुना है, बजट सेशन में सुना है, तो हम चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करते। मतलब आपको जो चीज समझ में आए ऐसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चाहे उसके लिए मेरा प्रेजेंटेशन बाकी इन्वेस्टर्स को थोड़ा मीडियोकर लगेगा कि ये स्टाइलिश नहीं है डेटा पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो स्टाइलिश डेटा में क्या है ना, you may be smarter as an investor, but there are other investors who may not be understanding everything so comfortably. So it is my duty and endeavor to put it in a very simplified way. तो इसमें आप देखिए चार्ट में, तो हम एक साइकिल बनाए हैं हमने, लेफ्ट से जाते हैं। मार्केट जनरली रैली करता है जब आपकी अर्निंग्स अच्छी आती है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट नीचे होता है, इन्फ्लेशन नीचे होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उस टाइम पे पी मल्टीपल भी बढ़ता है, जो हमने 20, 21, 22 में देखा। उसके बाद आता है कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन आना चालू हो जाता है, बिकॉज मनी प्रिंटिंग हैज इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट। आपका इन्फ्लेशन आता है, उसके पीछे पीछे मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होती है, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चालू हो जाती है। उसके बाद आता है जब मॉनेटरी पॉलिसी में इतने बदलाव आते हैं, तो सडनली आपके मार्केट को रियलाइज होता है कि देयर इज अ इन्वेस्टर इनवर्स रिलेशनशिप, तो पी मल्टीपल टूटना चालू हो जाता है कि भाई अभी हम 20 का पी नहीं देंगे, अभी हम 15, 17, 18 का पी देंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जब पी टूटता है और साथ में अगर अर्निंग्स टूटता है, तो डबल वे में इम्पैक्ट होता है। इसलिए हम देखते हैं ये जो क्रैश आप देखते हैं ना, 50% अवे फ्रॉम द 52 वीक हाई, और 60%, 80% अवे फ्रॉम 30%, 15%, वॉट एवर नंबर इज आउटकम ऑफ दिस साइकिल। Then comes a stage with slowing growth, lower inflation, government start easing monetary policy with interest rate cuts and quantitative easing, improving liquidity. उसके बाद आता है earnings growth पिकअप होता है और पी मल्टीपल एक्सपेंशन आता है। अगेन मार्केट रैली करता है, एफआई इनफ्लो जोर से आता है। अभी हम है ना, ये वाला जो राइट साइड का जो माउंटेन बना है, उसके एकदम बॉटम के नजदीक है। सो ये जो साइकिल है उसमें what we are saying is that के central banks globally अभी भी थोड़े रेट हाइक करेंगे, because their inflation is out of the comfort zone, and as a result of that आपका interest rate अभी भी वहां पे ऊपर जा सकता है। इवेंचुअली वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स होते हैं या रिड्यूस होते हैं या मॉडरेट होते हैं या रिसेशन आता है, वॉट एवर वी डोंट नो। एंड उसके बाद आपके इन्फ्लेशन जोर से गिरना चालू होते हैं, हाई बेस भी होता है, और उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि नाउ इनफ, वी हैव डन द रेट हाइक्स, एंड यहाँ से मुझे इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाने नहीं है, एंड यहाँ से मैं पॉज लेता हूँ। एंड वो पॉज आता है तब मार्केट ऑलरेडी उसको समझ जाता है कि अभी पॉज के बाद रेट कट आना चालू होगा, एंड दैट्स व्हाई द मार्केट स्टार्ट डिस्काउंटिंग इट अर्लियर, and so we are still some time away from that process, but I have tried to highlight it in a simplified flow chart so that you can understand where are we standing as of now. इंडिया की बात करें तो RBI has kept the repo rate unchanged for the April meeting. This is first time after 6 consecutive rate hike in a row.
इसमें सिंपल है, हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर है, दे हैड अ हिंट ऑब्वियसली कि ये नंबर अच्छा आएगा, तो 15 मंथ के लो पे आया है। कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डाउन, सर्विसेज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो 17 मंथ लो पे आया है। तो क्लियरली यहाँ पे आपका जो इन्फ्लेशन है वो ईज होता दिख रहा है। एंड ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स विल स्टिल हैव टू रेज रेट्स अ बिट टू कम्बैट द इन्फ्लेशन which is outside of their comfort zone. So India has navigated. Now, GDP नंबर जो है वो 7% ये साल हिट करेगा। एंड जो भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो यही इंडिकेट करते हैं कि ग्रोथ अच्छा आ रहा है। अभी जैसे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा क्या है कि जो हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी को गेज करने में मदद रूप रहता है, जैसे क्रेडिट ग्रोथ, पर्सनल लोन ग्रोथ। पर्सनल लोन ग्रोथ इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर डिमांड कैसा है। सो दैट ग्रोथ इज वेरी गुड, 20% से आजू बाजू ग्रो हो रहा है। देन अनदर इज नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, जिसमें सब कुछ आ गया है अदर देन फूड क्रेडिट, इंडस्ट्री सब आ गया आपका। तो वहां पे भी ग्रोथ नंबर सिस्टम वाइज 16% के आजू बाजू है, विच इज रिलेटिवली वेरी गुड नंबर। दैट इंडिकेट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो रही है। बैंक्स को लोन मांगने के लिए लोग आ रहे हैं, मतलब देयर इज अ कंजम्पशन समवेयर, देयर इज अ प्रोडक्शन, there is a demand, there is expansion, that indicates that, right? And that's why आपका क्रेडिट डिमांड अच्छा होता है। फोर व्हीलर का बात करें तो वहां पे ये चार्ट डिस्टॉर्टेड लगेगा बिकॉज ऑफ 92% जंप इन 1 मंथ, वो बेस इफेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट बेस इफेक्ट, बट आप वैसे भी देखो तो देयर इज अ एक्सपांशन और ग्रोथ इन द फोर व्हीलर नंबर्स। दिस इज टू व्हीलर ग्रोथ नंबर, इट इज रिकवरिंग। Then this is a petrol consumption in liters growth YOY, decent number, higher than the GDP growth on an average. Diesel consumption, which is even better barometer, which is also growing. GST collection, it's a phenomenal, incredible journey for the GST collection, and this number is consistently improving, and the March has been fantastic. Let's see, but there might be a case कि इसमें to some extent जो exponential inflation आया और imported inflation आया कि भाई हम बाहर से जो चीजें import कर रहे हैं उसके दाम बहुत बढ़ गए, वहां पे अगर भाव टूटते, जैसे मेटल के भाव टूटे, ऑयल एंड गैस के भाव टूटे, बाकी कमोडिटीज के भाव टूटे, तो हमारे यहाँ जीएसटी का कलेक्शन टू सम एक्सटेंट कम हो सकता है। उस टाइम पे हमको इसको टाइम देना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट आउटकम ऑफ प्लेन प्रोडक्शन ग्रोथ, इट इज ऑल्सो आउटकम ऑफ द प्राइसिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड प्राइसिंग इज ड्रिवन बाय डिमांड, ड्रिवन बाय सप्लाई, अगर आपका एंड ड्रिवन बाय अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। सो ये जो जीएसटी कलेक्शन है वो ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा जा रहा है। पैसेंजर एयर ट्रैफिक ग्रोथ, एयरलाइंस आप देखो, दैट इंडिकेट्स कि देयर आर मोर फ्लायर्स, there is better well to do environment in the system, and the growth is phenomenal. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है, 50 के ऊपर अगर ये नंबर रहता है तो इकोनॉमी एक्सपांशन मोड में मानी जाती है, 50 के अंदर नंबर रहता है तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन मोड में मानी जाती है। सो वी आर कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग way superior number for both services as well as manufacturing part of the economy. Then this is thermal power plants, plant load factor, pan India. Now this is very interesting. आप देख सकते हैं कि अभी तो peak summer आया ही नहीं है, and we could actually see the demand going up in December, January, February. So clearly यहाँ पे दिखता है कि आपका पावर कंजम्पशन कंट्री में बढ़ा है, एंड पावर कंजम्पशन तभी बढ़ता है जब आपकी पावर की नीड होती है, और नीड पर्सनल लेवल पे होगी, प्रोफेशनल लेवल, आई मीन टू से दैट इंडस्ट्री लेवल पे होगी। सो आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। देन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल एट you know that the country level as a whole is also improving consistently. It is now close to 72%, which used to be in 67% in December 20. So there is a continuous improvement. There was a big dip during the COVID time to 60%, and then it started moving up again gradually. It is now close to 74. So these were the high frequency indicators, which clearly indicates कि यहाँ से growth में इतनी जोरदार कटौती नहीं आएगी। Inflation already आपका cool off हो रहा है,
RBI has already taken a pause. RBI is not confirming that this is our, it will be status quo going ahead. हम rate hike नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन it is a clear sign that they are thinking that the inflation is, if it is under control, we don't want to damage the growth. That's what the beauty of the central bank. फोर्थ क्वार्टर जो रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं और या चालू हो गए हैं, ऑलरेडी हमने कुछ नंबर्स देखे हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि ऑटो एंड बैंकिंग विल ड्राइव मोस्ट ऑफ द निफ्टी 50 अर्निंग ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर, जबकि कमोडिटी, एनर्जी एंड सीमेंट विल बी अ ड्रैग ऑन वाईओवाई नंबर। एक दो तरह से आपको नंबर्स दिखाते हैं मार्केट में, वाईओवाई मतलब ये मार्च क्वार्टर वर्सेस प्रीवियस मार्च क्वार्टर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज सीक्वेंशियल नंबर। व्हाट वी से is a December quarter versus March quarter. So YOY is March this versus previous March. Quarter on quarter is December quarter versus March quarter. So IT में हमेशा quarter on quarter numbers देखे जाते हैं, कुछ कुछ सेक्टर्स में देखे जाते हैं, बाकी सब में YOY नंबर देखते हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर कुछ जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई सेक्टर बहुत पेन से जा रहा है, वहां पे वो पेन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। जैसे कोई सेक्टर में मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मार्जिन प्रेशर रिड्यूस हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखना पड़ेगा। ओके, जून क्वार्टर का नंबर बहुत खराब आया, सितंबर का इक्वली खराब आया, दिसंबर से मार्जिन थोड़े बेटर हुए, तो देन भले वो सेक्टर वाईओवाई वाला सेक्टर है, लेकिन एक सीक्वेंस आपको बनता है और वो हम देख सकते हैं कि नहीं मार्जिन ट्रेजेक्टरी इंप्रूव हो रहा है, एंड देन मार्च में और सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट है। दैट मीन्स कि अभी आपका सेक्टर जो है वो ट्रबल से बाहर आ रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ऐसा मानना है कि ऑटो एंड बैंकिंग विल कंट्रीब्यूट लार्ज पार्ट ऑफ द ग्रोथ फॉर दिस फोर्थ क्वार्टर नंबर्स। लेट्स स्टार्ट विद आईटी। एज वी सेड, वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बायस हमारा न्यूट्रल है। ग्लोबल मैक्रोज काफी वीक है, डिमांड आपका नियर टर्म में इम्पेक्टेड है, मार्जिन्स भी इम्पेक्टेड है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ -2 से +2 की रेंज में हम देख रहे हैं। सो क्लियरली यहाँ पे -1.5 से +2, और मार्जिन्स भी हम प्रेशर में देख रहे हैं, 70 बिप्स टू 150 बिप्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो यहाँ पे क्या है ना, मटेरियल डाउनसाइड सेक्टर वैल्यूएशंस में आ चुका है, जैसे ऊपर के जो पी मल्टीपल है वो काफी करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर जोर से यूएस रिसेशन में जाता है और वहां पे जोर से स्लो डाउन आता है, तो यहाँ से भी आईटी स्टॉक 20% लार्ज कैप लेवल पे भी गिर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट अगर वहां पे ग्रोथ जो डैमेज होना था वो हो चुका है, और थोड़े टाइम के बाद अगर वहां की गवर्नमेंट बोलती है कि अभी हम पोज लेंगे, रेट हाइक नहीं करेंगे, सिर्फ इतना भी बोल दे, भले वो पोज थोड़े टाइम के बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग या रेट कट में कन्वर्ट होगा, तो भी मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेगा, और मार्केट बोलेगा छोड़ यार, FY24 के नंबर वैसे भी खराब आएंगे, ऑलरेडी भाव ऊपर से 25, 30, 40 टुका टूट चुका है, तो बेटर है कि हम FY25 के नंबर्स को देखें। तो 6-8 महीने के लिए ये सेक्टर में कोई बड़ा डैमेज भी नहीं होगा, बड़ा रिटर्न भी नहीं बनेगा, और ग्रेजुअली उसके बाद वापिस पैसा बनना चालू हो सकता है। इट्स वेट एंड वॉच वाला सेक्टर। वी आर कॉशियसली, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। अभी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एंड स्पेशली यूएस फेड का क्या डेटा आता है, क्या स्टैंड होता है, उसके ऊपर ये सेक्टर का मूवमेंट डिसाइड होगा। क्वार्टरली numbers are not great, especially Infosys. TCS is also not that superb. Both numbers are below expectations. Let's see how other companies report the number. Second is banks. Our bias is strong growth and positive bias. यहाँ पे banking will contribute large part of the incremental earning growth for FY23 fourth quarter. हम minimum 20 से 40% प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का नंबर आया, 20% प्रॉफिट ग्रोथ आया है। हावेवर एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो लोन ग्रोथ है जो कंटिन्यूसली अच्छा आ रहा है, एनआईआई जो नेट इंटरेस्ट इनकम का जो नंबर है वो भी कंसिस्टेंटली अच्छा आ रहा है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहे। क्रेडिट कॉस्ट माने जो बैड डेट के लिए या एनपीए के लिए जो प्रोविजन होता है वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो कुछ कुछ चीजें जैसे लोन ग्रोथ एंड एनआईआई जो है वो हिस्टोरिक हाई लेवल पे आ गए हैं, एंड जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया। अभी यहाँ से नए एनपीए धीरे धीरे बनेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी यहाँ से क्रेडिट कॉस्ट घटने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एनपीए इतना ज्यादा था, उसके लिए आपका प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा था,
अभी एनपीए लेवल कम आते गए, कम आते गए, कम आते गए, प्रोविजनिंग कम होता गया, अभी वो क्रेडिट कॉस्ट बॉटम आउट हो गया है। सो बेस्ट पार्ट ऑफ द नंबर्स हमने बैंकिंग में देख लिया है. So we'll have to very carefully analyze the number for next financial year. So Q4 is given, good numbers are discounted, we know it के numbers अच्छे आएंगे. Sectorial loan growth 15 से 15% के आजू बाजू आएंगे. एंड जो रिपोर्टिंग बैंक है, जिसे इसमें क्या होता है, आरबीआई जो डेटा देता है ना, उसमें 15% लोन ग्रोथ वाई दिख रहा है. लेकिन जो बड़ी बड़ी बैंक जो भी डिस्क्लोज करती है, बड़ी छोटी बैंक की, हमारे एक क्वार्टर में इतना लोन ग्रोथ है, उसका कंपाइलेशन देखते हैं तो 18% लोन ग्रोथ दिखता है. दैट मीन्स के फ्यू बैंक्स हैव रिपोर्टेड 18% ग्रोथ. Few banks would be actually delivering much lesser than 15% growth, and that's why the blended number is coming at 15% at RBI website. तो क्लियरली हमको ये देखना है कि नॉन रिपोर्टिंग बैंक है उनके नंबर्स कैसे आते हैं, लिस्टेड में या फिर अनलिस्टेड में. अनलिस्टेड का डेटा वी कांट एक्सेस, बट लिस्टेड में विल हैव टू सी. सो दिस इज ऑन द बैंकिंग साइड. एनबीएफसीज मीडियम टर्म ग्रोथ है, बायस हमारा न्यूट्रल है. हमको नहीं लगता कि एनबीएफसीज में अभी भी, जैसे वी चूज टू रिमेन इन बैंक्स, वी डिडंट गो फॉर एनबीएफसी with big bank. We only took participation in few names like Ujjivan Financial Services and all, where we made a lot of money. We have some exposure in the sector, but we are not going very aggressive. यहाँ पे हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ एनआईआई ग्रोथ को मैच नहीं करेगा, बिकॉज उनकी जो डिपॉजिट है वो हाई प्राइस पे आ रही है. बैंक से भी बहुत ज्यादा कंपटीशन अभी भी है, और वो जो जितना उनका डिपॉजिट या जो उनकी बोरोइंग कॉस्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली बैंक से एनबीएफसी दोनों को क्या करना पड़ता है, पैसा मार्केट से बोरो करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और वॉट एवर वे, और वो लैंड करते हैं हाई प्राइस में. तो एनबीएफसी की पर्टिकुलरली बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और सामने वो लोन का रीप्राइसिंग इतना फास्ट नहीं हो रहा है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बैंक से भी कंपटीशन है, तो उनके मार्जिन्स में डाइवर्जेंट ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं. कैपिटल गुड्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, फास्टर एग्जीक्यूशन इज आल्सो हैपनिंग. गवर्नमेंट कैपेक्स बहुत अच्छा है, प्राइवेट कैपेक्स भी रिवाइव होने को दिख रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विच आई जस्ट मेंशन. ऑर्डर इनटेक बहुत अच्छा है, 18 से 20% ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ है एक्स एल&टी को छोड़ के, बिकॉज उसका बेस बहुत ज्यादा है. So we are looking at 12 to 15% revenue and profit growth, which is very decent. पावर एंड रेलवे में बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है. रेलवे में मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत इंटेंसिव स्पीड पे हो रहा है. रिन्यूएबल्स में अच्छा काम हो रहा है. there are new sectors emerging like data center, metro, hydrogen, so and so forth. So यहाँ पे हमको कोई बड़ा इश्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन एज सेड most of the capital goods stock, और हमने last year अच्छी एंट्री ली है, most of the capital goods stocks are expensive. They will have to deliver the good numbers to justify their expensive valuations. Consumer discretionary again mixed bag है, हमारा bias selectively positive है. यहाँ पे मिड प्रीमियम एंड अर्बन सेगमेंट में बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है, मोमेंटम है, बट जो मास मार्केट प्रोडक्ट्स है या फिर रूरल सेंट्रिक प्रोडक्ट है, वहां पे मोमेंटम नहीं है. सो जैसे जैसे हम देखें तो ज्वेलरी हो गया, या लगेज हो गया, या फिर सर्टेन रिटेल पॉकेट्स हो गए, जैसे जूडियो है या वेस्ट साइड है, वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम है. लेकिन जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया है, या तो फिर आपका दूसरा इवन द रूरल सेंट्रिक कोई भी पोर्टफोलियो है, वहां पे इम्पैक्ट आपका ज्यादा है, मोमेंटम ग्रोथ का मॉडरेट है. तो यहाँ पे इवन द रिटेल है, जो रूरल सेंट्रिक या मास मार्केट सेंट्रिक रिटेल है, वहाँ के नंबर्स काफी पुअर आ रहे हैं, और वो एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स है. सो यहाँ पे जैसे हम रिटेल में क्या देख रहे हैं, दो तरह से होता है. एक होता है कि फुटप्रिंट एक्सपेंशन के नए स्टोर्स ऐड करते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ आता है, और जो होता है सेम स्टोर ग्रोथ. मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ, मैंने 100 स्टोर मेरे लास्ट ईयर ऑपरेशनल थे, ये साल भी वही 100 स्टोर था, उसका क्या ग्रोथ है, उसका नंबर आता है SSG, जो हम देखते हैं सेम स्टोर ग्रोथ नंबर. तो दैट इज अ ट्रू पैरामीटर, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ जो हम रिपोर्टेड देखते हैं ना, उसमें स्टोर ग्रोथ जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है. तो अगर नए स्टोर हटा दो, मान लो कंपनी ने 20 स्टोर ऐड कर दिए तो 120 काउंट हो गया, तो 20 स्टोर कंट्रीब्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ, दैट्स फाइन. बट जो 100 बनाए थे और जो खड़े हैं, उसका क्या ग्रोथ है.
तो वहां पे मॉडरेशन दिख रहा है। सो एक बाजू फुटप्रिंट एक्सपांशन से ग्रोथ आ रहा है, लेकिन दूसरी बाजू जो स्टोर खड़े हैं वहां पे ग्रोथ मॉडरेट होता दिख रहा है। सो यहाँ पे काफी मिक्स बैग माहौल है एंड हमारा बायस बहुत सिलेक्टिवली पॉजिटिव है। अगेन मोस्ट ऑफ द नेम्स आर वेरी एक्सपेंसिव on a valuation front, and it would be tighter of walk for them to match the investors' expectation in coming quarters. Consumer staple, as I said, जो प्रीमियम या मिड प्रीमियम या अर्बन सेंट्रिक है, दे आर डूइंग वेरी वेल। सो ज्वेलरी हो गया, फूड स्नैक्स हो गया, पेंट हो गया, वहाँ के सिगरेट हो गया, वहाँ के नंबर्स ठीक आएंगे। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, वहाँ के नंबर वीक आएंगे। नेट हमको ऐसा लगता है कि 12 से 14% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 15 से 18% आपका एबिटा ग्रोथ आ सकता है। बट एक ही चीज है, इंटरमिटेंट रेंज जो अभी आए फरवरी और मार्च में, दैट इज क्वाइट नेगेटिव। एंड अल नीनो का जो इफेक्ट जो लोग बोल रहे हैं, विच विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून, विच विल बी प्रोबेबली लेसर देन लॉन्ग पीरियड एवरेज, LPA जो बोलते हैं, उससे कम आएगा। तो ये रूरल काफी एक्सपोज होता है वेदर और मॉनसून साइकिल से, और उसका इम्पैक्ट सीधा आपका FMCG या कंज्यूमर स्टेपल्स पे पड़ता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो हम 3 सेगमेंट देखे। एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसमें आपके जो आपकी चॉइस वाले जो एक्सपेंसेस है, जो नेसेसिटी नहीं है, वो आ जाते हैं। एक नेसेसिटी वाले स्टेपल्स आते हैं। तीसरा ड्यूरेबल्स, अगेन वो भी डिस्क्रिशनरी का ही पार्ट है, बट सेपरेट सेगमेंट है, जिसमें व्हाइट गुड्स या फिर केबल्स एंड वायर्स वो सब आता है। तो केबल्स एंड वायर्स में ग्रोथ ठीक ठाक आएगा, लेकिन जो ड्यूरेबल्स में जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर है, वो मेजरली समर ड्रिवन प्रोडक्ट से आता है, क्योंकि सारे डीलर्स रीस्टॉकिंग करते हैं, क्योंकि समर अगर अच्छा होता है तो डिमांड आता है AC, फैन, कूलर्स वगैरह में। तो वहां पे अनसीजनल रेन हैज प्लेड एज अ स्पॉइल स्पॉट, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टिव नंबर ठीक ठाक आएंगे। एंड जो इंटेंसिव समर सेटअप हुआ था अर्ली पार्ट ऑफ फेब्रुआरी में, वो सेकंड हाफ ऑफ द फेब्रुआरी एंड मार्च में वॉश आउट हुआ, लेकिन अगेन द समर हैज पिक्ड अप इंटेंसिवली एंड प्रोबेबली द डिमांड शुड रिज्यूम बैक। सो ये चीज यहाँ पे डिसेंट अर्निंग ग्रोथ आएगा। हमारा बायस इसमें पॉजिटिव है। वी हैव टेकन सम एक्सपोजर टू द एयर कंडीशनिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट कंपनीज। सीमेंट YOY नंबर डिक्लाइन आएंगे, बायस फिर भी पॉजिटिव है, क्योंकि सिक्वेंशियली सारे नंबर्स अच्छे आएंगे। पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट सिक्वेंशियली कम हुई है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है, डिमांड बॉयंट है, सो सिक्वेंशियली मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट सिक्वेंशियली कम होती जाएगी। पेट कोक एंड कोल के प्राइसेस ऊपर से 30 से 50% टूट चुके हैं। सो क्लियरली इवेंचुअली आगे जाके नंबर्स अच्छे होने का चांसेस है। बिल्डिंग मटेरियल अगेन मिक्स बैग, जो जैसे पाइप एंड सिरामिक्स है, वहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सीक्वेंशियल नंबर्स अच्छे दिखेंगे। सिरामिक्स में 7 से 9% जैसा वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगा। वुड पैनल्स या फिर जो आपका जो प्लाई या MDF है, वहां पे नंबर्स खराब आ सकते हैं, बिकॉज वुड के प्राइसेस हाई है। इंपोर्ट में काफी इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। जो क्रूज या शिप्स की अवेलेबिलिटी कम थी, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स जो पहले ज्यादा थे, वो क्रैश हो चुके हैं। सो द इंपोर्ट्स हैव बिकम क्वाइट वायबल एंड दैट इज क्रिएटिंग सम मार्जिन प्रेशर। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाइप कंपनीज के नंबर्स, प्लम्बिंग साइड पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। एग्री साइड पे अभी भी डिमांड वीक है, बिकॉज अनसीजनल रेन, एज आई सेड, एंड हायर इन्फ्लेशन हैज इफेक्टेड द रूरल स्पेंडिंग। मेटल्स एंड माइनिंग, अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर, फेरस माने स्टील, नॉन फेरस माने एल्यूमिनियम वगैरह के नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि रियलाइजेशंस अच्छे हैं। सिक्वेंशियली कॉस्ट भी सिक्वेंशियली टूटा है, बट YOY नंबर खराब दिखेंगे, तो विच विल इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन द निफ्टी 50 अर्निंग्स। फार्मा हमारा ऐसा मानना है कि रेवेन्यू एंड एबिटा 14 से 18% तक ग्रो करेगा, डिस्पाइट ऑफ द एसेंशियल ड्रग लिस्ट विच वाज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें काफी ड्रग्स वो कैटेगरी में गई जहाँ पे कंपनीज को प्राइस कट करना पड़ा, तो भी हमारा डोमेस्टिक फार्मा मार्केट, जो इंडियन फार्मा मार्केट है, उसमें 11% ग्रोथ आया है। एंड द US मार्केट इज ऑल्सो शोइंग अ साइन ऑफ रिवाइवल। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक ग्रोथ एज वेल एज
इंटरनेशनल ग्रोथ, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत स्पाइक हो गए थे वॉर की वजह से, वहां पे काफी सैनिटी आई है वहां पे, विच विल हेल्प देम टू इम्प्रूव द ग्रॉस मार्जिन्स। मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा एज अ सेक्टर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है कि पहले ये था कि इंडिया मार्केट्स जो था उसमें जो ग्रोथ था वो देख के कंपनी आती थी सालों पहले और अपना पैसा लगा के प्लांट सेटअप करती थी। उसमें उनको बहुत अच्छा कैश फ्लो बनता था, अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनता था। फिर उनको लगा कि यूएस मार्केट काफी लुक्रेटिव है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, तो हम वहां के लिए यहाँ से बना के वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो जो इंक्रीमेंटल कैपिटल एलोकेशन जो इंडिया मार्केट के लिए हो रहा था वो डाइवर्ट होके डेवलप मार्केट स्पेशली यूएस मार्केट के लिए जाना चालू हुआ। इनिशियली दे ऑल मेड गुड, वेरी गुड मनी, सो उनका जो ब्लेंडेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर था वो कम नहीं हुआ। पर धीरे धीरे यूएस मार्केट में इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गई, वहां पे कुछ प्रोडक्ट में लॉसेस चालू हो गए और कंपनीज को कुछ प्रोडक्ट बंद करके फेज आउट करना पड़ा। यूएस एफडीए की ऑडिट्स एकदम स्ट्रिक्ट हो गई, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ गए और काफी कंपनीज के यूएस बिजनेस जो हाई रिटर्न रेशियोज वाले थे या हाई मार्जिन वाले थे, ओवरनाइट सिंगल डिजिट रिटर्न रेशियोज एंड सिंगल डिजिट मार्जिन वाले हो गए। तो जो ब्लेंडेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है कंपनी का वो टूटना चालू हो गया। Most of the companies have understood this very clearly. So incremental capital allocation towards the US market is very niche, very selective. They are only putting up the factories and products which are very, very viable, where there is a niche opportunity, there is very limited competition. They are, because हमने recently देखा कि एक कंपनी ने बहुत बड़ा राइट ऑफ लिया यूएस मार्केट के लिए, जितना कैपेक्स किया था वो सब राइट ऑफ ले लिया। I mean, this is for the first time in the history of the pharma we have seen that a pharma company putting up the capacity. It's like आप कोई एक्सपांशन कर रहे हो, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि जो जो मार्केट के लिए मैंने एक्सपांशन किया था वो मार्केट में मैं वायबल ही नहीं हूँ, तो आपने वन टाइम वो सारा पैसा राइट ऑफ माने लॉस दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल दिया। सो यू नो दैट्स वेयर द सेक्टर्स मेक बॉटम एंड वी फील दैट यहाँ से यूएस मार्केट शुड आल्सो ग्रेजुअली स्टार्ट सीइंग better color, and the pharma market in India is anyways very robust, and that's why we have a slightly positive, I mean positive bias, and though the growth may not be very super normal and growth will be moderate, and we had exposure to few pharma names, we made phenomenal money, we moved out at the peak and those stocks have crashed a lot. So we are selectively picking up the opportunity. Auto, I mean, I know it's slightly getting longer and this is the last sector to discuss about. यहाँ पे भी just like banking आपका contribution towards fourth quarter earnings बहुत अच्छा आएगा। इन्फ्लेशन नंबर डिक्लाइनिंग है, YOY क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सप्लाई चेन इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले हो रहा है। फोर व्हीलर में मोर देन 20% वॉल्यूम ग्रोथ है, टू व्हीलर में भी वॉल्यूम ग्रोथ भले ना हो लेकिन आपके मार्जिन इंप्रूवमेंट है। तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपका 18 से 40% के बीच में, आपका रेवेन्यू ग्रोथ 18% से 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 30 से 40% के रेंज में आएगा। लेकिन everything is known to the market, based of the things are known to the market। यहाँ से क्या अननोन है, अगर वापिस इंटरेस्ट रेट के चलते इन्फ्लेशन हाई अगर रहता है, इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई रहता है, तो डिमांड मॉडरेट हो सकती है, बेस इफेक्ट भी प्ले करेगा। बिकॉज अगर 20% पीवी के नंबर्स अच्छे, फोर व्हीलर्स के नंबर अच्छे, ऐसे हाई बेस पे आपको और ग्रोथ लाना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स में अगर ग्लोबल प्लेयर्स जो एक्सपोजर वाले उनको वहां की डिमांड क्रैश होती है तो इम्पैक्ट आएगा। तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू कीप कंसीडरिंग व्हाइल वी मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द सेक्टर। अभी नेट नेट FY24 का जो अर्निंग ग्रोथ है वो कुछ इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट बियॉन्ड 10% ग्रोथ रेट फॉर FY24। अभी ये See, as a investor, we need to keep our eyes and ears open। तो मैं आपको सारे सेक्टर्स का जो बताया ना उसका समरी बताता हूँ। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अभी भी शोइंग अ साइन ऑफ फटिग, मतलब इट हैज स्टार्टेड शोइंग अ साइन ऑफ फटिग। एक लेवल के बाद वहां पे कुछ कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी जैसे QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो गया या सर्टेन रिटेल सेगमेंट हो गया, वहां पे क्लियरली साइंस अभी फटिग के दिख रहे हैं।
IT is still struggling to showcase the growth revival. ये साल तो आप भूल जाओ, जैसे जिस हिसाब से इन्फोसिस वगैरह ने गाइडेंस दिया है, कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं आएगा. इट विल बी वेरी मॉडरेट ग्रोथ. तो वहां पे 10% से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. बैंकिंग हमने एक चीज आपको मैं बताऊं, 5 साल में बैंकिंग का प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा है ऑन अ वेरी लो बेस ऑफ FY18. तो वो इतना ज्यादा बेस पे अभी आपका अर्निंग ग्रोथ फिर भी मेरे हिसाब से 12 से 15% अर्निंग ग्रोथ आएगा, विच इज अबोव द 10% ब्लेंडेड नंबर व्हाट आई हैव सजेस्टेड. बट बेस विल प्ले सम इफेक्ट. सो ऑटो एंड बैंकिंग में बेस इफेक्ट प्ले हो रहा है. IT is struggling, discretionary showing some sign of fatigue. अल नीनो की प्रोबेबिलिटी की वजह से मॉनसून इफेक्ट होगा, तो रूरल एंड मास मार्केट प्रोडक्ट्स में आपका कंजम्पशन स्लो डाउन दिखेगा. ऑयल एंड गैस एंड मेटल टोटली इंटरनेशनल के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर जब तक वहां का इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है, जब तक वहां के इंटरेस्ट रेट पिक आउट नहीं होते हैं, तब तक ये सेक्टर में इंक्रीमेंटली अर्निंग्स ग्रोथ आना रिलेटिवली मुश्किल है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मुझे लगता है कि 10% से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ मार्केट में मुझे दिख नहीं रहा है FY24 में. बट यू नो मार्केट काफी चीजें डिस्काउंट कर देता है, तो डोंट टेक इट नेगेटिवली. आपका नैरेटिव्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज मार्केट डिस्काउंट करता है काफी चीजें. एंड प्रोबेबली मार्केट विल लुक एट अदर वे अराउंड दैट. ओके, 17-18 मंथ्स में बाजार में कोई पैसा नहीं बना है, काफी स्टॉक्स ऑलरेडी पिट चुके हैं, बहुत नेगेटिव रिटर्न्स आ चुका है पोर्टफोलियो लेवल पे इंटरनली. यहाँ से अगर आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे जाता है इन्फ्लेशन के साथ साथ, और यहाँ से अगर लिक्विडिटी थोड़ी इन्फ्यूज होती है, तो FY25 का अर्निंग ग्रोथ अच्छा दिखेगा. तो 6 महीने के बाद जब मार्केट FY25 को डिस्काउंट करना चालू करेगा, तब आपका लेटर हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में आपके मार्केट के मूव्स सुपीरियर देखने को मिल सकते हैं. सो इट इज लाइक स्टेइंग इन द मार्केट, नेविगेटिंग द टाइम, एंड देन अगेन टेक द अपटिक. सो अगर आप टाइमिंग करोगे कि चलो अभी 5-6 महीना कुछ नहीं हो रहा है, तो आपके हाथ में नहीं है. कल को उठ के पता चला द US फेड विल अनाउंस दैट ओके वी आर डन विद द रेट हाइक, देन डन. एक बड़ा मूव आपका मिस हो जाएगा. तो आपका जो इंक्रीमेंटल एक मूव ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स में जो कंट्रीब्यूट करता है, वो बहुत बड़ा करता है. So you should not get worried on that front. And in that context, we are always there to navigate the portfolio. As we said, our focus theme is auto, banking, exports, pharma, auto, capital goods, and consumption. हमारा जो portfolio है अभी 34 stocks का है. We know it is slightly higher. Generally, we say that we remain between 1920 to 35. We are hitting the upper part of the 35 count. But we wanted to reduce the risk. We wanted to take into exposure into multiple names, so that the damage, if at all would be there, would be minimum. And that has actually helped us a lot. Cash on hand is approximately 4%. These are the top 10 holdings. There are few names which we have introduced after a long time, like Reliance. जो जब हमने नहीं लिया था, तब stock did equally bad, underperformed the market very badly. So we have taken some exposure. So net, it's a decent looking portfolio. There is nothing exciting for an investor when they look at the names. आप ये भी बोल सकते हो ये सारे चीज तो मैं भी ले सकता हूँ. But that's what the art of the market is. And with this healthy portfolio and that certain quality selection at a mid and small cap level, which have given us extra kick, and large caps navigation between one space to another within the sector, multiple sectors ke beech mein, we have also generated a very good return. So we will stick to our style of respecting risk, balancing act, and capturing the market volatility. So this is the change in the portfolio compared to last March versus this March. Phenomenal change in the holding names. You can see this is month-wise alpha, or sorry, the month-wise return of the portfolio versus the benchmark. And this is a cumulative output. Last 1 year, benchmark is minus 2.16. We are plus 3.66 net of all fees. TWRR return since inception also we are now 9.10 versus 7.68 benchmark. So very healthy and
happy face oriented performance. I'm not saying that we have done a great job, but of course, I can say that we have put in a genuinely hard effort to protect the wealth of the investors during the most difficult and very painful internal market internals जो थे, जो मैंने आपको दिखाए वो period में, we have navigated it so well in last 18 months. ये पूरे साल का first half, second half का bifurcation है. Last year we had a 4.52%, that is 452 bips का alpha. This year first half में 4.47% का alpha था, second half में 1.38% का alpha आया. तो टोटल हमारा जो अल्फा बना है 582 बिप्स और 5.82% का बना. So we have consistently delivered alpha back to back compared to benchmark. This is a comparison between mutual fund flexi cap category. You can clearly see that average flexi cap category return is negative for either 6 months or for 12 months. That is minus 1.82% for the flexi cap category of the mutual fund. Nifty 200 का रिटर्न -2.17 है, हमारा रिटर्न +3.66 है. So of course we do comparison with the mutual fund as well. Now if we look at the comparison with the PMSs, the leading 5 PMSs, they all are in deep red. 9% minus, 7.5% minus, -4.5%, and positive 3.3%. This is as on February data. We are yet to update for the March. Our return is 5.78% versus the average negative return of -5.33%. A phenomenal alpha over the benchmark as well as over the peers. एक ये इंटरेस्टिंग डेटा मुझे आपको दिखाना है, जिसमें हमने 200 करोड़ से ज्यादा की AUM वाले PMS लिए हैं. तो एक साल में जो वो there are 47 flexi cap category schemes, जिसका large mid and small का exposure decent है. हमने वो वाली schemes नहीं लिए जिसमें small and mid cap बहुत ज्यादा है, and they classify themselves as a multi cap category, but it's a other way around. You can't be saying that you are a multi cap and you have a very large exposure to mid and small cap. So there are 47 schemes, उसमें से 15 स्कीम ने बेंचमार्क के रिटर्न को बीट किया है, जो रेशियो होता है 32%. 3 साल का देखा जाए तो 42 में से 17 स्कीम ऐसी है जिन्होंने बेंचमार्क के रिटर्न को बीट किया है, तो रेशियो है 40%. 5 साल में 33 स्कीम से उसमें से 15 स्कीम ने बेंचमार्क के रिटर्न को बीट किया है, तो रेशियो है 45%. दैट मींस नॉट इवन अ 50% ऑफ द ऑडियंस इज एक्चुअली बीटिंग द बेंचमार्क नेट ऑफ फीस. And if we look at our case, obviously we have beaten the benchmark quite significantly with a significant alpha. So यहाँ पे आपको ये चीज खास ध्यान रखनी है. And don't go by 1 year returns. Look at the 3 years, 5 years returns. Don't go by rolling returns कि भाई January versus last January, February versus last February, because आपका बेस बदलेगा वैसे वैसे रिटर्न बदलेंगे. आपको या तो कैलेंडर ईयर रिटर्न मांगने हैं 5 साल, 3 साल, 10 साल के, या तो फाइनेंशियल ईयर रिटर्न मांगने हैं. स्टिक टू वन पर्टिकुलर पीरियड एंड कंपेयर, बिकॉज ये जो रोलिंग रिटर्न है मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा भी आपको दिखता है ये रोलिंग रिटर्न है कि भाई बड़े ये एज ऑन मार्च है इसलिए ये मैटर करता है, लेकिन मैं एज ऑन अप्रैल दिखाऊंगा, फिर एज ऑन मई दिखाऊंगा, तो बेस बदलेगा वैसे वैसे रिटर्न बदलेंगे. यू ऑलवेज आस्क फॉर द रोलिंग कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल रिटर्न. Coming to markets, we are looking at 935 rupees EPS for FY24 and 1000 rupees EPS by FY25, which is just 7% growth over FY24. Very mediocre growth assumption. On that, हमारा 16,800 का नीचे का निफ्टी का लेवल आता है, जो हमने बताया था इन्वेस्टर्स को. मार्केट एक्चुअली रिस्पेक्टेड दैट लेवल. जो लास्ट ईयर हमने 15,500 का रेंज बताया था, मार्केट ने उसको भी रिस्पेक्ट किया था, और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे मिली थी पैसा टॉप अप करने के लिए. यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली. वी रिसीव्ड लॉट ऑफ फंड ड्यूरिंग दैट टाइम of 15,500 as well as this time 16,800. यहाँ से मार्केट 17,800 पे आ गया है, तो आपका जो अभी जो रिस्क रिटर्न जो है उसमें ऐसा दिख रहा है कि 17,800 और 16,800 लोअर लेवल है, तो क्लियरली 6-7% का नेगेटिव रिटर्न का चांसेस यहाँ से है, और अपसाइड में वही 14-15% पॉजिटिव रिटर्न का चांस है. But if you look at FY25, then the downside itself is 18,000, which is
higher than 17,800 level. So clearly downside नहीं दिखती है जब हम 20 महीने का बात करें या 22 महीने की बात करें, एंड अपसाइड काफी अच्छी दिखती है 22,000 तक की. So this is all about the view on the market. Now I will open the floor for whatever other formalities, Q&A. Yashvi, thank you very much. Thank you so much, Karthik sir, for such an insightful session. So yes, we'll open the Q&A session. So all the investors can post down their questions in Q&A column. So there are questions popping in. You can just Yeah, I'm just reading it. yeah. There is a difference between robot and human, Yashvi. Okay, that is. What is your view about gold? Shall we book full profit or should add more at current level? What is your target? Actually, very honestly, I've gone, I would say wrong, that I could not gauge the moment of the gold in the way what I could have, because हमने Nasdaq में बहुत अच्छा timing किया, we made money, but the gold is something where our view is not forming up well, and there are multiple reasons for that. And in fact, आप देखो gold का return ये March versus previous March, तो return है ही नहीं dollar term में, but when it comes to INR term, returns are there. और स्पेशली पिछले 1-2 महीने में गोल्ड में डॉलर टर्म में भी पैसा बना है, बट फिर भी वो YOY नंबर तो दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब एक साल में किसी का पैसा नहीं बना है. हाँ, ये बात जरूर है कि कंपेयर टू बाकी स्टॉक जो टूटे, गोल्ड टूटा नहीं है, बाकी इक्विटी मार्केट टूटे, गोल्ड टूटा नहीं है, तो वेल्थ प्रोटेक्ट हो जाती है. लेकिन एक साल में डॉलर रिटर्न्स नहीं बना है, रुपी रिटर्न्स बना है बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन. सो यहाँ से भी मेरा व्यू कोई एक्सट्रीमली कॉन्क्रीटली बुलिश नहीं है, बट आई एम गेटिंग बुलिश, और नॉट बुलिश बट आई एम गेटिंग पॉजिटिव. सो मैं नेगेटिव अटैचमेंट नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पॉजिटिव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश भी नहीं हूँ, बट आई एम पॉजिटिव. So when I say positive, I would not recommend you to book full profit. That is the answer to. I'll be very candid with your questions so that you get the candid answer. Second question is, what will be the Nifty range for time being? So I think the time being Nifty range is between 16,800 on the lower side and 16,400 very near term, 400, 300, 17,300, 400 very near term. So दो लेवल मैंने आपको बताया, 17,300, 400 very near term, 16,800 for the slightly medium term. On the lower side, on upper side, 18,100, 200 in a near term, and then 18,800 on a medium term. तो ये आपका निफ्टी का रेंज है. आपको इन्वेस्टर्स को गाइड करना है या टाइमिंग करना है इन्वेस्टमेंट के लिए. मैं जनरली इतना प्रमोट नहीं करता हूँ ये साइकोलॉजी को, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंटल टॉपअप के लिए ये काफी हेल्पफुल रहता है. कैन वी हैव एक्सपोजर टू हेल्थ केयर सेक्टर? हमने तो लेके रखा है, वी आर पॉजिटिव ऑन इट. Can we, if we decide to invest, within how much time the fund get deployed in equity? हम जनरली जो भी इन्वेस्टर का पैसा आता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का कैश लेवल है, वो रख के इन्वेस्ट कर देते हैं. लेकिन अगर बहुत ऊपर के लेवल में पैसा आता है तो हम 25-30% कैश रखते हैं, फिर मार्केट को देखते हैं, फिर धीरे धीरे डिप्लॉय करते हैं. और यही हमारा मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस है कि यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड टू एक्चुअली गेट द बेनिफिट आउट ऑफ द मार्केट. बट ये बात जरूर है कि वी आर नॉट shying away from generating large cash if it is needed,
if it is a need of the market, but अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो अभी अगर कोई हमको पैसा देता है तो जनरली हम उसको लार्ज पार्ट इन्वेस्ट कर देंगे, बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म व्यू, मीडियम टर्म व्यू अच्छा ही है। What is your view on hotel and hospital? I think hotel is cyclical business. मेरा view अभी भी positive है। Hospitals में भी global medical tourism is returning back. Healthcare as a sector is taking priority in the mindset of the citizens. So ये दोनों में से hospital long term structural story है, hotel is a cyclical. अभी cycle काफी favor में है। I will not answer for the stock specific queries, so I am avoiding that. What is your view on the new age technology companies? See, very frankly, I don't get excited for them. Their revenue models are uh, very much driven by multiple factors, and I'm just talking about revenue model. I'm not going to the EBITDA and profit number because there are so many X of these, X of these. So X निकालने के बाद numbers जो profit का derive होता है उसमें मजा नहीं आता है। मतलब आज खाना बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें से ये वाली सब्जी हटा दो और ये वाला फरसान या जो मिष्टान है वो हटा दो तो खाना बहुत अच्छा था। दैट इज द वे यू नो यू वांट टू से दैट नंबर्स तो अच्छे थे, एक्स ऑफ दिस एंड दिस। दैट्स व्हाट इज जनरली दिस न्यू एज कंपनीज रिपोर्ट, which is not in my not getting into my mindset, so I would still stay away from them. Will this okay, एक technical वैसे stock specific I would avoid, but there is one question which is interesting, that will the HDFC Bank and HDFC Limited merger match or exceed the Reliance weightage in the Nifty? It might probably match. Will this have a potential higher expectation from the merged HDFC Bank? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। In fact, merged bank will deliver the synergy benefits, and it is in the interest of the investors. In fact, it is a good move, and we have a large position in the bank. So with that disclosure, with positive bias, of course, numbers are debatable for the recent quarter. There is some the growth is slightly lesser compared to what market thought, but अभी इतनी बड़ी बैंक में स्लाइड लेसर क्या फर्क पड़ता है, दिस इज जस्ट स्लाइड लेसर। बट लोग ये देखते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ या एनआईआई ग्रोथ है, लेकिन आपका प्रॉफिट ग्रोथ रिलेटिवली उससे कम है, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो कॉस्ट टू इनकम का एक रेशियो होता है 200 बिप्स से बढ़ गया है, तो उसका एक रीजन है। बैंक अभी सॉलिड ब्रांच एक्सपेंशन मोड में है, उनको 1.5-2 किलोमीटर के कस्टमर की पेरिफेरी में आ जाना है, जो पहले 5-6 किलोमीटर के उनका विजन था। तो आप सरप्राइज हो जाओगे, ये क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक ने मोर देन 600 ब्रांचेस ओपन की है। सो आप समझ लो कि रोज की 6 ब्रांच ये क्वार्टर में ओपन हुई है, और पूरे साल में भी तकरीबन उन्होंने 1400-1500 ब्रांच ओपन किए हैं। उसमें से लार्ज पार्ट ये क्वार्टर में हुआ है, एंड 6,500 न्यू एम्प्लॉइज इंडक्ट हुए हैं। सो क्लियरली कॉस्ट आया है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा आगे जाके। तो डोंट गेट वरीड, these are the quality businesses, and merger is positive for the bank. And since we have exposure and allocation, I have moral right to comment on that, so I am doing that with disclosure. Is it the right time to enter for the first timer for PMS, or is it good to enter and join with SIP? आप राइट टाइम कभी भी लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाओगे। इज इट अ राइट टाइम टू गेट मैरिड? इज इट अ राइट टाइम टू गो फॉर अ स्लीप? नेवर। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बट मार्केट में हमने देखा है कि जब भी मार्केट डिस्टर्ब होता है या फिर रिटर्न्स पैथेटिक होते हैं इंटरनल्स के, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे टाइम में तो सब कोई अच्छा बोलेगा, पर रिटर्न तभी बनते हैं जब आप खराब टाइम में आते हो या टफ टाइम में आते हो। तो ये टफ टाइम तो है, क्योंकि 16-18 महीने से रिटर्न नहीं बना है मार्केट में किसी का, टूटा है बहुत ज्यादा लोगों का पैसा। तो वो टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 2-3 साल में अच्छा रिटर्न 100% बन सकता है। नाउ कमिंग टू SIP, यू कैन ऑलवेज डू SIP विथ अस, so you can give
वन टाइम पेमेंट एंड देन क्वार्टरली मंथली जो भी SIP आपको करना है आप कर सकते हो. What are your target for alpha for next year? मेरा तो एंडेवर है कि मैं एवरी ईयर बाजार के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न नेट ऑफ फीस बनाऊं. उससे ज्यादा मुझे कुछ मैं भगवान से मांगता नहीं हूँ मेरे इन्वेस्टर्स के लिए. लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है. जैसे कई बार क्या होता है ना, अपना हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो कोर फिलोसॉफी है, उसमें कुछ फ्रेमवर्क में कुछ चीजें फिट नहीं होती है, या फिर हमको लगता है यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं करना चाहिए. और मार्केट उस चीज को डिलेड रिस्पॉन्स के साथ एक्सेप्ट करता है. तो टेम्पररी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रिटर्न कम दिखे कंपेयर टू मार्केट, और फिर हम कैचअप करें. तो इट्स अ साइकिल. बट देन अगर आप एक साल को छोड़ दो और 3 साल 5 साल के विजन से देखोगे तो हमारा अल्फा दिखेगा ही दिखेगा. ऑफ कोर्स हमारा बैक टू बैक 2 साल से आ रहा है, दैट डजंट मीन कि ये साल भी आएगा. हमारा एंडेवर है. बट अगर आप लॉन्गर टर्म हराइजन देखोगे तो हमारा अल्फा बनता ही बनता है, and it is proven. So that's what the answer to your question. What is your view on IT and pharma? I have very clearly given my view in my speech. Can Nifty touch again 16,800 से 17,000? It has to first take a pause at 17,300-400 level, and if it breaks further down, then only it will go and retest again. Um, uh, can we wait for the correction to add money? Yes, some correction, some dip is always because हमने बहुत वन वे नीचे से 1000 पॉइंट निफ्टी की रैली देखी है. सो बट इतना माइक्रो मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे, मतलब मैं तो नहीं कर पाता हूँ. सो अगर आप इन्वेस्टर हो तो सोचो ही मत ये सब चीजें. आप जस्ट पैसा इन्वेस्ट करके एक डिसेंट एक्सपोजर डिसेंट टाइमिंग के लेके भूल जाओ, तब भी वेल्थ बनेगी. वरना आपका इतना माइक्रो मैनेजमेंट पे वेल्थ बनाना मुश्किल है, फिर आप ट्रेडिंग गेन्स ही बनाओगे. इंश्योरेंस कंपनीज व्यू, आई हैव नेवर टेकन जनरली एक्सपोजर. हमने अपने आप को उससे काफी दूर रखा है. वी हैव गॉट बेनिफिट आउट ऑफ इट. वी आर स्टिल वेरी uncomfortable. We don't want to take any exposure in the near term. There is a question about customer service, risk management practices, fees and charges in the PMS. We have variety of fees model, fixed fee, variable fee, hybrid. We have a very firm and rigid risk management practices जो आपने मेरी slide में भी देखा on the investment front, on the operation front, and customer service के लिए we have a dedicated customer service desk. We focus on the turnaround time, that whenever the investor queries or questions do come, we try to answer them as efficiently as possible. And that's what I can say. We have a very healthy practice. We have a customer first approach, and that percolates at the organization level, not just in the customer service and risk management, but on the investment side as well. Can we wait for any more questions? Friends, I have spoken a lot. If you have understood it, and if you really want to raise your questions, just throw it. I would be more than happy to answer it. Or else, it's getting lunchtime. Everybody will probably be hungry. And if that is the case, Yashvi, shall we conclude? Yes, I think your session was prompt and very explanatory, that everyone has understood it really well. So I guess, yes, we'll conclude the session here. Thank you so much, investors, for giving your time and attending this quarterly webinar. We'll
We are happy to have you on. Thank you so much, Karthik sir. Thank you. Thank you, everyone.